Good morning, students. 8th class. Today we will do our 4th chapter in English grammar, tenses of verbs future. In previous class we have already done these tenses of verbs future, and 8th class is same is there, the chapter tenses of verb future. So simple future tense. What is the simple future tense? What we will use here? We will use helping verb will and shall. Where we will use will and where we will use shall? First is there I will or the contraction I will is used when an action to be done at the time of speaking is denoted. Look here, I will have my dinner now, so I will not take tea or coffee. Next is there, the tap is leaking, I will call the plumber. That I will are the contraction I will is used when action to be done at the time of speaking is denoted. And will not or would not is the negative form of the will. Where we will use will not or would not. It is the negative form of the will. She would not be interested in picnic. That is the negative form. वो पिकनिक जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है. So we will use here would not. Where we will use will to state the view of opinion of the speaker, जिसमें स्पीकर बोलने वाले की ओपिनियन ली जाती है, उनकी राय ली जाती है. Now look here the example, I think it is start now, otherwise I will get late. That is opinion is there. Second example, I do not think I will be able to afford a car. It is also the view or opinion of the speaker. Second is there to express an offer to help. जब हम express करते हैं an offer to help, किसी को help करने के लिए अपनी offers देते हैं. I will carry the luggage for you. That is offer. हम उसे offer देने हैं help की. क्या मैं आपका बैग कैरी कर सकता हूँ? You are sick. I will take you to doctor. इसमें भी वो उसे अपनी हेल्प की ऑफ़र कर रहा है कि आप यू आर अ सिक, आई विल टेक यू टू डॉक्टर, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ. नेक्स्ट, वेयर वी विल यूज़ विल टू प्रॉमिस समथिंग, किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस करना. आई विल कॉल यू ऑन संडे इवनिंग, मैं तुम्हें संडे इवनिंग को कॉल करूँगा. दैट इज़ द प्रॉमिस इज़ देयर, सो वी विल यूज़ विल. टू आस्क समबॉडी टू डू समथिंग, किसी को कुछ कहने के लिए, कोई काम करने के लिए. विल यू काइंडली पोस्ट द लेटर फॉर मी, क्या आप मेरा लेटर पोस्ट कर देंगे. टू आस्क समबॉडी टू डू समथिंग. शैल आई, शैल वी. वेयर वी विल यूज़ शैल, वी यूज़ शैल आई एंड वी. मोस्टली आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ हमारा विल लगता है. अगर आप विल भी लगा दो तब भी वो फ्यूचर टेंस में गलत नहीं होगा, दोनों का मीनिंग सेम है. बट वन रूल इज़ देयर कि हम शैल कहाँ यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ हमारा क्या लगता है, शैल लगता है. वी यूज़ शैल आई एंड शैल वी इन क्वेश्चन टू स्टार्ट एन ऑफर और सजेशन दैट इज़ बीइंग मेड. नाउ लुक हियर एग्जाम्पल, शैल आई मेक सम टी फॉर यू. सजेशन ये ऑफ़र कर रहे हैं उसको. शैल वी सेलिब्रेट द ग्रैंडमा 90th birthday. That is also suggestion is there. In a certain sentence in the first person, shall gives information. Look here example is there, I shall be much obliged to you. We shall reach Delhi today. In a certain sentence in first person shall given information. In the second and third person, shall indicate command or threat.
जहाँ पर हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन इज देयर आई माई मी वी अवर अस, सेकंड पर्सन यू यूवर्स यू, एंड थर्ड पर्सन ही शी इट दे देम. एंड शैल डेडिकेट कमांडर थ्रीड, they shall not play here, you shall do as you are told, they shall pay for their the negligence. Now next is there going to, where the going to form is used, where we used going to suggest and the intention or a decision to do something in the near future. टू सजेस्ट, जिसमें कुछ सजेस्ट किया जाए, कोई डिसीजन लिया जाता है नियर फ्यूचर, फ्यूचर के जो आने वाले फ्यूचर होता है उसका. दे आर गोइंग टू हैव द हाउस वार्मिंग द सेरेमनी दिस वीकेंड. गोइंग टू ये फ्यूचर का ही है जो नज़दीक आने वाला है. द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू अनाउंस अ हाई इन द DA, ये भी फ्यूचर में ही है, अनाउंस होने वाला है नज़दीक, फ्यूचर के जो बिल्कुल नज़दीक आने वाला है. नेक्स्ट इज देयर टू द फोरकास्ट अ फ्यूचर एक्शन व्हेन देयर इज़ क्लियर द इंडिकेशन दैट इट विल कम ट्रू. जब जो ए फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है, दैट इज़ क्लियर इंडिकेशन, ये इंडिकेशन मिल जाती है, चिन्ह से मिल जाता है, और इट विल कम ट्रू, वो सही होंगे. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल इज देयर, ही इज़ क्रॉसिंग द लिमिट, ही इज़ गोइंग टू सफ़र द consequences. Home loan has become cheaper. Many people are going to apply for home loan. ये क्या है? A forecast of future action when they indicate that it come true. Next, difference between will and going to. What is the difference between the will and going to? Will suggest a decision made at time of speaking. विल का प्रयोग कहाँ होता है? सजेस्ट ए डिसीज़न, जिसमें कोई डिसीज़न के लिए सजेस्ट किया जाता है एट द टाइम, जब बोला जाता है तब. एग्जाम्पल, आई विल कॉल द डॉक्टर जस्ट नाउ, मैं अभी डॉक्टर को बुला रहा हूँ आपके लिए. और गोइंग टू क्या होता है? सजेस्ट एन इंटेंशन आर डिसीज़न एक्सिस्टिंग बिफोर हैंड. Example is there, she is going to appear for GRE to go abroad for higher studies. उसने क्या, she is going to appear for GRF to go abroad for higher study. That means going to suggest an intention or decision existing beforehand. आगे के लिए. नेक्स्ट इज देयर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यू, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड हियर इज द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में विच हेल्पिंग वर्ब वी हैव यूज देयर? कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया था? वाज एंड वर्ब. एंड प्रेजेंट इज देयर, so helping verb is are and am is there. Present continuous tense with the implication of future. यानी कि हम present continuous tense कब हम यूज़ करते हैं? इन implication of future. फ्यूचर में कई बार क्या होता है कि हम present continuous tense यूज़ करते हैं. कब करते हैं? A future action is denoted with the help of the present continuous tense when. कब करते हैं? when the speaker knows that the action is bound to take place because a preparation has already been made. तब होता है जब स्पीकर को या बोलने वाले को ये पता है the action is bound to take, कि जो एक्शन है वो टेक प्लेस हो जाएगा एंड ऑलरेडी मोस्टली मतलब वो हो जाएगा उस काम को. जैसे माई सैलरी इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, मेरे नेक्स्ट मंथ सैलरी इंक्रीज हो रही है. ऑलमोस्ट उसको पता है, एम्प्लॉयज़ को पता है, या मुझे पता है. ऑल स्कूल्स आर ओपनिंग नेक्स्ट वीक. सभी स्कूल नेक्स्ट वीक खुल रहे हैं. जैसे गर्मी की छुट्टियों के बाद मोस्टली पता होता है कि 1 जून से हमारे स्कूल खुलते हैं, तो हमें ऑलरेडी ये मालूम होता है. तो वी विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस
ये हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज़ करेंगे। अब ये भी इसका दे रखा है, सैलरी विल इंक्रीज फॉर नेक्स्ट एंड द कंडीशन टू रिमेन इंक्रीज हैंस फ्रॉम इज रिक्वायर्ड, बट all schools will open next week, but they will not open every following week. They will simply run till next vacation, hence from is not required. Next is there simple present tense denoting the future. सिंपल प्रेजेंट टेंस कई बार क्या होता है, फ्यूचर के लिए हम फ्यूचर का यूज़ ना करके सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आर SAIS कब यूज़ करते हैं, वी ऑफन यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू डिनोट फ्यूचर इवेंट्स मेंशन इन कैलेंडर आर फिक्स्ड बाय द ऑफिशियल टाइम टेबल। कब हम यूज़ करते हैं, तब यूज़ करते हैं मेंशन इन कैलेंडर, या तो मेंशन हो कैलेंडर में, आर फिक्स्ड बाय द ऑफिशियल टाइम टेबल। जैसे द कॉन्फ्रेंस बिगिन्स जैसे अब हमें मालूम है कि कल हमारी जो कॉन्फ्रेंस है या कल हमारी मीटिंग होगी, तो हम विल और शैल ना लगा के, या हमें मालूम होता है कि हर मंडे को हमारी मीटिंग होती है। द कॉन्फ्रेंस बिगिन्स एट 9 टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी, तो हम विल शैल ना लगा के बिगिन्स। द रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन संडे दिस ईयर, इस साल जो है वो हमारा रिपब्लिक डे कब पड़ रहा है, रविवार को पड़ रहा है, तो क्या यूज़ करेंगे, आर है फॉल्स। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, आपका क्या यूज़ होता है, विल बी एंड शैल बी एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। कहाँ पर होता है ये देखिए, वी नो दे विल बी एक्सपेक्टिंग अस, दे विल बी एंड एक्सपेक्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगा। कहाँ होता है, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू डिनोट an action which will be going on at given point of time in the future। कहाँ पर लगता है, अगेन मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू डिनोट an action which will be going on at a given point of time in the future, जो एक गिवन टाइम दे रखा है फ्यूचर के लिए, तब हम क्या लगेंगे, विल बी एंड शैल बी एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। दिस इवनिंग विल बी सेलिब्रेटिंग आवर पेरेंट्स 20th मैरिज एनिवर्सरी। इस इवनिंग शाम को हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, तो हमने क्या लगाया, विल बी शैल बी एंड फर्स्ट फॉर्म और ING। एन एक्शन दैट इज़ मोर आर लेस सर्टन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी कि जो काम या तो बहुत अधिक हो या कम हो, सर्टन निश्चित है इन फ्यूचर में। जैसे नेक्स्ट ईयर माई एल्डर सिस्टर विल बी गेटिंग मैरिड, तो या तो कम संभावना और निश्चितता, या उसकी जो है निश्चितता कम है या ज़्यादा, तब हमारा यूज़ होता है नेक्स्ट ईयर माई एल्डर सिस्टर विल बी गेटिंग मैरिड, यानी कि अभी हुई नहीं, शायद हो जाए। द डाउटफुल इज देयर, द सेम आइडिया कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। नेक्स्ट ईयर माई एल्डर सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी, और यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, क्या लगता है इसमें, विल हैव, परफेक्ट इज देयर, हैव, विल हैव या शैल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये है हमारा विल हैव, शैल हैव टू एंड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज द थर्ड फॉर्म इज देयर। द गेस्ट विल हैव लेफ्ट बाय इवनिंग, ये यूज of future perfect tense. This tense is used to denote an action completed before a given moment in future, यानी कि फ्यूचर में गिवन जो टाइम मोमेंट होता है उससे पहले ही क्या होता है, एक्शन कंप्लीट हो जाता है। द पेशेंट विल हैव द कोलैप्स्ड बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्स। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज इज देयर ING, और ING लगेगा तो कब लगेगा, जब बीन लगाएंगे तब। विल हैव, शैल हैव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, ये हमारी इसकी फॉर्म्स किस तरीके से हमारा ये बनता है, ये इन दोनों का दे रखा है। जैसे ग्रैंड मदर विल हैव बीन रीडिंग द स्क्रिप्चर फॉर 1 hour
when the milkman comes. Use of future perfect tense. This tense is used to denote an action that will commence before a given moment in future, will continue up that the moment and will be going on even at the moment. यानी कि जब हुआ और तब तक ये चलता रहा on that moment तक. The students will have been studies. जैसे स्टूडेंट पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है for 3 hours. कब तक? 3 घंटे से पढ़ रहा है. When the bell rings for recess. जब तक रिसेस की बेल नहीं होगी तब तक वो पढ़ता रहा, यानी कि ऑन दैट मोमेंट तक वो कंटिन्यू उसका चलता रहा. तो वहाँ पर हमारे क्या लगेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यस, 8 क्लास हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. और आप एक बारी इस चैप्टर को ध्यान से देख लीजिए और इसकी मैं आपको अभी वीडियो ही आपके पास आ जाएगी और एक बारी आप इसको ध्यान से देख लेना कि इसमें क्या क्या दे रखा है. ओके, और कल मैं इसकी एक्सरसाइज को आपको आंसर शीट सेंड कर दूंगी. इसकी जो भी आंसर शीट है इसकी कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगी घर से, और बाकी कुछ क्या है इसमें ए से लेकर एफ तक है. तो इसमें जो मुझे लगेगा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी और बाकी आंसर शीट कल आपको सेंड कर दूंगी. ओके स्टूडेंट, अगर कोई डाउट हो तो मेरा नंबर है आपके पास ऑलरेडी, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं. ओके, गुड बाय एंड स्टे सेफ.